All right then. So greetings to all the viewers. My full name is Abhishek Singh, representing Yarrow Global, and today I am glad to invite one of my colleagues and teammates, our visa expert, Miss Anshita Singh, to our podcast, which is basically based on a topic for the candidates who are just looking to start their journey for their study abroad, how to start, and what are the steps going forward. So welcome, madam, and I would love to welcome you on my Thank show. you, Abhishek, for giving me this opportunity to have this understanding of complex process of study Yes. abroad. So my first and very prominent and a very honest question. This question we get in from a lots and lots of candidates these days because since we understand बहुत सारा बच्चा है मैम जो भी नया इस टाइम पे बैच आउट हो रहा है Yeah, स्टूडेंट्स दे हैव दिस एस्पिरेशन ऑफ स्टडिंग अब्रॉड yeah, इंटरनेशनल yeah. स्टडीज कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा सपना होता है विच दे कीप वर्किंग फॉर लास्ट 2-3 years नाउ इज द टाइम व्हेन दे आर आउट इन द मार्केट रिसर्चिंग अपॉन थिंग्स और Yeah. एक सबसे पहला ऑनेस्ट क्वेश्चन बच्चों का ही आता है विच कंट्री टू सिलेक्ट. That is actually the thing in the study abroad. That is the major challenge the student or parents to face. Ki which country is suitable for the students while they are going for a study abroad option. So, first and most important thing while we are choosing any country is the academic goals basically for the student. So academic goal is not only to become an engineer, become a doctor, or मुझे scientist बनना है, मुझे is what is your keen interest? If the student, because many of the students come after 12th as well, Yep. you know, after 12th, the students comes into the picture very open-minded. He is not having a single idea about any country, any education system. Right now, he is starting his career. So at that point in time, he needs to understand ki which country suits him. What is the interest of the student he want to gain post completing after 5-6 years of investment to a country? Yes. Because he is going to invest into that country, their parents is going to invest, right? After that, in the major thing, once you had decided upon your course, either my dream is to become a lawyer, my dream is to become an engineer, my dream is becoming a doctor, then the most important thing is the quality of education, because every country is having a specific education pattern, matching the student capabilities, matching the student profile, which country suits the student's education system to. Either I'm not a very brilliant student, suppose that I'm a student, I want to go somewhere, मैं एक student को बोलती हूँ कि ठीक है आप चले जाओ, but he is not having those capacity to go US. He is having the other capacity who wants to go to UK or Germany. So try to guide. And Yarab is actually doing, we are doing the same thing over here. So we are actually helping the students to understand the potential of that student and understand ki which university, which course, which country will be helpful for them. Post that, also we all know India is not a speaking in English country. Yes. We are not bound to speak English. We are having n numbers of languages over here. We speak our native language too. We speak English, we speak Hindi. So a complex country when comes into the picture, and the student wants to go from a different language set to a different language set, he always think which language would be easier to me. Okay. Yeah. See, Anshita, what we have seen is because students they get informations from a lot of sources these days, correct now? And because this is an open platform where there are millions of channels from where you can gather information, and some sources says कि, okay, Canada is currently in a state of a bother. Some sources says कि, okay, US is in a state of a bother. We have seen a lot of deportations recently. Australia always has been very challenging, one of those toughest countries where you have to be very strong with the documents. Students sometimes is struggling to find, a right pathway into this. How to cope up with this kind of situation? What can be a right channel of information? First things first, correct? Now, because see, since we all know Canada as a very popular study abroad destination, we all know UK as a very popular study abroad destination. We all know US what potential US has. Similarly, when we go down, when we go to Australia or New Zealand and maybe other European countries or Singapore or Dubai, because there are lots and lots of destinations which are open these days. So, what can be a right pathway for the candidates in the selection of the country? First of all. Very rightly said, Abhishek, because what we feel actually, the student is having a very clear picture about each and every country. Canada is having some difficulties relative to migration or something like that. But nowadays, what the student feels, they are actually going and searching in Google. Yep.
कि what is the right place to study, which country is suitable. They are getting n numbers of counseling part ki no, this country is having this issue, this country is having that issue. That is not the correct way to search. Yes. First of all, Yes. cultural aspects of each and every country is always different. Mm-hmm. If I come to India, India is not a country where crimes are not there, where Yeah. recession is not there. Very true. Every country is having drawbacks, so every country is having the positive side too. Very true. Plus safety, healthcare, everything comes across the valuation. Each country is having the golden opportunity for their students. Mm-hmm. Okay, if I talk about, let's take an example. Suppose that I'm a student, I'm going for an XYZ company for my interview. Mm-hmm. I don't know the company. I don't know the company. Now, same goes with the student who is going for a study abroad. He doesn't know any company right now or any country right Yes. now. The student who is entering to the country, he is actually made that country. Very true. Okay. Now, if I talk about how the student can select the right path or right country, don't think ki where my brother stays, where my sister stays, where my uncle stays, where I'm having some of my family member. No. Mm-hmm. In abroad, they don't have time for their family, how they will make a time for you. Very true. Okay, they will be having their lives. Mm-hmm. They are actually busy with their lives. They need to earn money. Struggling over there are a very difficult part. Now, coming to the part ki no, my uncle stays in Canada. He says ki Canada is not having part-time job opportunities. Mm-hmm. What the student do? They don't have a right counseling at a right phase. True. Counseling is very important while you are making any facing any challenge. Deciding upon country is not like a cup of tea for anyone to decide upon a country and go on a country because my uncle, मेरे ताता चाचा जी रहते हैं तो वो उन्होंने बोला था कि it's for a very nice place, and actually the student faced this issue. Mm-hmm. So decide this first of all. Decide upon the student profile. Mm-hmm. स्टूडेंट को क्या बनना है, स्टूडेंट को मैनेजमेंट करना है, स्टूडेंट को इंजीनियरिंग करना है, साइंस बैकग्राउंड से जाना है, वो एक डिसाइड कर लो. देन कम टू अ पॉइंट कि ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उस कोर्स का कहाँ है भाई, Sure. वो डिसाइड कर लो. फिर काउंसलिंग के लिए तो वी हैव ऑप्शंस. यारब इज एक्चुअली हैविंग n numbers, thousands of universities tie-ups with us. We are actually making the dream come true for the students. Yes. At a one roof, you are getting a expert counselor for particular country, either USA, UK, Australia. We are having our own team, which is having a particular dedicated team for the students for a particular country. True. It's not only ki we are challenging the students for Australia too. No. Student is now confused with Germany, so he wants to go Germany. That's not a part. Our counselor is made to help the students in their counseling. Very true. From starting of their phase till the students reach their university, and not only in this phase. Once the student gets settled over there, we are also helping in that part too. Mm-hmm. Because many of the counselors doesn't know ki how to be in touch with the students once the students reach out there. Exactly. If we actually have a conversation with those students, we actually get to know ki what actually student face while they reach out over there. Exactly. Mm-hmm. International students actually doesn't face any kind of issue while they are going for any abroad study. Mm-hmm. If the counselor is guiding him throughoutly. Sure. तो आपने ज्यादा कुछ नहीं है. एक right consultancy is a major thing. एक right guidance is a major thing. Country आप YouTube से देखोगे, आप Google से देखोगे, आप बहुत जगह से देखोगे, you will get n numbers of counseling things कि ये country अच्छी नहीं है, ये country अच्छी नहीं है. तो दुनिया में इतनी सारी country, कोई तो अच्छी होगी भाई, सही बात है. सारी country थोड़ी खराब होगी. If we come to India, same goes with international students जो बाहर से यहाँ आते हैं. Exactly. We know IIMs में आते हैं, बाहर Yes. से भी बच्चे यहाँ Lot of आके resources पढ़ते in हैं. there. Yep. Mm-hmm. Also, if IITians जो होते हैं वो करने के बाद चले जाते हैं बाहर. Exactly. Mm-hmm. मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडिया में नहीं होते हैं, बाहर ही होते हैं. तो दे आर एक्चुअली मेंट फॉर इट. डॉक्टर्स यहाँ पे आधी कोर्स करने के बाद बाहर जाते हैं फॉर डीएम एंड एमएस करने के लिए कि हम वहां से कुछ अच्छा करके आएंगे तो हम यहाँ पे इंडिया में अच्छे डॉक्टर कहलाएंगे. True.
तो इट्स नॉट लाइक कि अगर हम कंट्री पे इतना स्टिक हो जाएंगे ना कि ये कंट्री अच्छी नहीं है, ये कंट्री अच्छी नहीं है, तो भाई साहब कोई कंट्री अच्छी नहीं है, फिर इंडिया भी अच्छी नहीं है. सही बात है. थैंक यू फॉर दैट वेरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन द हम्म. सिलेक्शन ऑफ द कंट्रीज, अंशिता. Yeah. बहुत चैलेंजिंग होता है एक राइट कोर्स सेलेक्ट करना. और हम्म. मुझे लगता है कि शायद से कभी जब हम लोगों ने अपना 10+2 खत्म किया होगा, और आपने भी ये चीज़ फेस करी होगी Obviously. कि एग्जैक्टली ये नहीं पता होता है कि आपको +2 के बाद करना क्या होता है, वेदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल. सेम गोज फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑल्सो. इन दैट केस कंट्री का आप सिलेक्शन कर लोगे कि ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चॉइसेस मे बी कि ठीक है आपके फैमिली मेट्स वहाँ पे हैं, या यू ऑलवेज हैड अ ड्रीम ऑफ गोइंग इनटू दैट कंट्री. बट व्हेन इट कम्स टू कोर्स सिलेक्शन, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग वेरी डायनामिकली. Yeah. एक बच्चा नॉन मेडिकल से आया है, बहुत 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 वास्ट फील्ड है उसके पास. हाँ. क्या एक पाथवे होगा, क्या पैसेज होगा कि बच्चा अपना एक राइट कोर्स सेलेक्ट कर सके, और हम एज अ टीम उसको कैसे हेल्प करते हैं वहाँ पे? Yes, Abhishek, that is true. While deciding upon the course is very typical for the students, because sometimes what happens, the student is having a very concluding part, कि no, I want to go for this particular course. But after 12th, major challenge जो students को होता है कि very plain student, एक normal background है PCB, PCM का, student is having n numbers of options in India as well and outside India as well. But कौन सा course? Selecting the course is actually the excess of interest and strength. Why? Because if I talk about a plain student in bachelor's, they face, अच्छा ठीक है, मैं मेडिकल भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं लॉ भी कर लेता हूँ, मेरे पास तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है. बट ऐसा होता नहीं है. द स्टूडेंट इज एक्चुअली मेंट फॉर अ इंटरेस्ट. बैचलर्स हम एक बार ही करते हैं. इट्स नॉट लाइक कि हम बैचलर्स किए फिर अगेन बैचलर्स किए फिर अगेन बैचलर्स किए, ऐसा होता नहीं है जनरली. वो बहुत कम सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक बार बैचलर्स करके फिर दोबारा किसी और चीज में भी बैचलर्स करेंगे, फिर एक बार और बैचलर्स करके फिर वो ट्राई एंड हिट एंड ट्राई कर रहे हैं वो अपने करियर के साथ. इट्स नॉट अ राइट डायरेक्शन ऑफ देयर करियर. So skills, passion is actually plays an important role while we are selecting the course. Also, the previous, suppose that if the student is not coming from bachelor degree, he or she is looking for postgraduate और PhD के लिए देख रहे हैं, किसी भी कोर्स के लिए देख रहे हैं, there are n numbers of things. So post graduation में क्या होता है कि I am having a different mindset, I am having different skill set till now. मैंने ग्रेजुएशन करी है प्लेन, बीकॉम किया है मैंने. बीकॉम करने के बाद द स्टूडेंट इज हैविंग एन ऑप्शन टू गो फॉर फाइनेंस ऑप्शन टू. कॉमर्स के सेक्शन में वो कहीं पे भी जा सकता है. ही इज हैविंग एन ऑप्शन ऑफ मैनेजमेंट टू एमबीए के लिए जा सकता है. अगर वर्क एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है उस डोमेन में, तो वो और भी जगह एक्सप्लोर कर सकता है. समहाउ स्टूडेंट्स के पास एक ऑप्शन ये भी होता है बैचलर्स के बाद कि कभी कभी हम वर्क एक्सपीरियंस भी होता है हमारे पास, 10 years, 5 years, 6 years, 7 years, किसी किसी के पास बहुत ज्यादा भी होता है. अगर हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस है तो हम अपने एक्सपर्टीज के थिंग्स में भी जा सकते हैं. Although sometimes what happen, the students feel कि मैंने प्रॉपर बैचलर्स नहीं किया, मैंने डिप्लोमा किया है, बट मेरे पास 22 साल 23 साल का एक्सपीरियंस है, क्या मैं अब्रॉड जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हो भाई. एमबीए कर लो जाकर के, मैनेजरियल एक्सपीरियंस है 10-12 साल का, जाकर के करो. Why you can't do? Yes. The actual myth is स्टूडेंट कैन गो और नॉट गो. मिथ यहाँ पे खत्म होता है जब आप अपने इंटरेस्ट सेट पे बैठ जाते हो. इंटरेस्ट सेट पे बैठने का ही एक लॉजिकल थिंकिंग है कि हमारा कीन इंटरेस्ट किस में है, हमें करना क्या है. कंट्री हमने डिसाइड कर ली, लेकिन कंट्री में वो राइट कोर्स हमें डिसाइड करना, क्योंकि वहां पे जाकर के यू नीड टू अचीव योर स्किल्स फर्स्ट. जब आपका स्किल्स सेट हो जाता है, देन यू विल गेट टू नो कि अच्छा ये मेरे स्किल्स हैं, अब आई नीड टू एक्सप्लोर ऑप्शंस पोस्ट कंप्लीटिंग माय कोर्स. 3 साल मैंने ड्रीम कॉलेज में दिया है, XYZ कोई भी कॉलेज हो मेरा, मैं वहां पे 3 साल अपना इन्वेस्ट किया है मैंने. उस 3 साल के बाद आई वॉन्ट टू पे दैट टू माई पेरेंट्स टू, कि हाँ ठीक है मैंने एक जगह पढ़ाई की, उसके लिए आपने मेरा 70-80 हजार लाख रुपए का खर्चा किया है. 80 लाख रुपए खर्च करने के बाद मैंने आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देना है. एंड मेजर थिंग इज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जब आप कोर्स डिसाइड करते हो, क्योंकि कोर्स इज समथिंग, कोई कोई कोर्सेज ऐसे होते हैं जो पे बैक नहीं करते हैं. स्टूडेंट का इंटरेस्ट सेट नहीं है, लेकिन बच्चे ने इंजीनियरिंग कर लिया है, बच्चा कहाँ काम करेगा? ही इज नॉट हैविंग इंटरेस्ट इन इंजीनियरिंग, सीएस बनना ही नहीं था, बन गया सीएस. ही इज हैविंग ड्रीम मॉडल इन कार्स, ऑटोमोबाइल्स. ही इज हैविंग हिज थिंकिंग कि यार वो कर लेता तो ज्यादा बेटर रहता. तो
वो भी एक माइंडसेट होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट बीकॉम का है लेकिन जाना चाहता है डेटा साइंस, Yes. करना चाहता है डेटा एनालिटिक्स, कैसे जाएगा? क्योंकि कोई माइंडसेट तो है नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। डेटा इज समथिंग कंप्यूटर साइंस, और किया उसने बीकॉम है, कॉमर्स बैकग्राउंड का है। तो हाउ द स्टूडेंट कैन सर्च आउट ओवर हियर? तो यारब इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग दोज स्टूडेंट्स इन द राइट डायरेक्शन, जहां पे कि वी आर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स टू डिसाइड द कोर्स एज वेल। आप फुल प्रोफाइल एनालिसिस कोई भी काउंसलर आपको नहीं करके देगा। इट्स लाइक कि व्हेन द काउंसलर इज इन्वेस्टिंग इनटू योर प्रोफाइल, he is giving you thorough time of your counseling, like your end months. If I talk about a counseling doesn't take a time period of 30 minutes or 60 minutes. It starts from first day till the students reach to university. Yes. Counseling is a very vast thing. Every day a student will learn new thing from her counselor. His counselor or her counselor is going to make him understand कि एक country में particular course में, एक particular university में, एक particular section में what are the major scopes. अगर एक स्टूडेंट ने ये सारे क्रैक्स पॉइंट अपने डिसाइड कर लिए कि उसे करना क्या है, उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटीज क्या है, स्कोप्स क्या है। काफी सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद वी आर नॉट गेटिंग जॉब्स। Yeah, that's a major challenge. क्यों जॉब्स नहीं मिलते हैं? क्योंकि स्टूडेंट ने पहला सिलेक्शन ये होता है हमने कोर्स तो कुछ भी ले लिया है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं नहीं हमें बस बाहर जाना है, Very true. हमें बस बाहर जाना है, भेज दो जी। हम्म। तो ये नहीं होता है। वी नीड टू थिंक कि हमें कहाँ जाना है, क्यों जाना है, और जाने के बाद वहां करना क्या है। अगर हमने एक कोर्स किया है तो उस कोर्स को करने के बाद व्हाट द आउटकम दैट वी आर गेटिंग। तो counselor is met for that, and Yarab is actually helping with this free education kind of thing to the students. The free counseling is not going a big task for the counselors. They are actually met for each and everything, and they are actually having the insights of 1,000 university, 1,000 countries as well. So every country is having different model of study. Every counselor is investing those trainings to you, like your career is into their hands, not into your hands. So you are coming at a roof point and you are making your decisions on the basis of your counselor. So counselor faith is into you. You are faithing into the counselor, and the company is having that potential to deliver to that students. So deciding upon the course is actually on the keen interest, research opportunities, how to get that dream come true is basically. Because we are having our counselors in set, because they are having in touch with universities. Thousands of universities are directly partnered with them. Yeah. So partnership with those universities, we are taking trainings, we are taking alumni support. So we are having each and every roof under one point. Alumni is something where the student has actually been in touch with us since long. He has done his overall career with us. Now he is placed somewhere in some good company at some good position right now. Yeah. So he or she can give you an insight कि yes, actually मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है because of that counselor. That's true. तो आपको अपने काउंसलर पर ट्रस्ट करना चाहिए। बेसिकली द काउंसलिंग इज समथिंग, क्योंकि काउंसलर की नीड क्यों होती है? कंट्री भाई कोर्स हमें चाहिए, हमें एक पोजीशन चाहिए जहां पे हम ये क्लेम कर सके कि यस दिस इज द थिंग्स एंड हाउ टू टैकल दिस थिंग्स इन अ राइट प्लेस। क्योंकि आप कंट्री तो अपने से भी डिसाइड कर लोगे, आप कोर्स भी अपने से डिसाइड कर लोगे, आप पेपर एप्लीकेशन डालनी है, सब कुछ कर लोगे, बट वहां जाने के बाद जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमने आए क्यों हैं, हमने किया क्या है। हमने तो पूछा था, हमें तो बता दिया था कि हाँ ठीक है ये वाला कोर्स अच्छा है, मेरे चाचा जी ने बोला था ये वाला कोर्स अच्छा है, मेरे भैया ने बोला था ये वाला कोर्स अच्छा, बट तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो तुम उसमें फिर बाद में जाके क्या करोगे? सो मेजर थिंग इज trust, always trust upon your consultancy, always trust upon your counselor, always trust upon your internal feeling of your interest. Yes, that's important. Yeah. Well, thank you, Anshita, again for a very detailed insight on the course selections. आपने कभी मेंशन किया इंग्लिश के बारे में, एंड सिंस वी ऑल नो इंग्लिश इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, करेक्ट ना? एंड इंडिया इज अ बिग कंट्री, वी टॉक अबाउट इंडिया, इट्स डाइवर्सिफाइड, अप नॉर्थ थिंग्स आर डिफरेंट, डाउन साउथ थिंग्स आर डिफरेंट, एंड स्टूडेंट दे कम फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। बहुत अलग अलग बोर्ड्स का बच्चा आता है, प्रोफिशिएंसी लेवल बहुत कम होता है कई बार बच्चों का, है ना? बट स्टिल
English is something which is a major hurdle, which is a major requirement when it comes to applying for an admission internationally. Give us an insight ki what are the countries where you can get a waiver, correct now, and how to start your journey when it comes to your preparation for maybe the language tests like the popular tests like IELTS, PT, TOEFL, or Duolingo. Very true, Abhishek. Basically, while we are planning for any English language or any country, we need to understand that India is not a speaking language country basically for English. Yeah. Okay, we are having our native language too. We are having Hindi as an मातृभाषा जो हम बोलते हैं. So basically, हमारे लिए इंग्लिश जो है वो कहीं ना कहीं इट्स अ कॉलेज में हम बोलते हैं, स्टूडेंट्स अपने ऑफिसेज में बोलते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग, और वो भी बहुत जेनरिक बोलते हैं. इट्स नॉट अ प्रोफिशिएंसी दैट वी आर हैविंग. हम बहुत जेनरिक सा इंग्लिश बोलते हैं. नाउ कमिंग फॉर अ कंट्री स्पेसिफिक, हर कंट्री का अलग होता है. जैसा कि आपने मेंशन किया कि विच कंट्री कैन प्रोवाइड अ वेवर. Yes. वेवर कैन बी प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ योर 12th स्कोर. 12th स्कोर पे हमें मिलता है वेवर, दैट इज 5 years, नॉट लेसर देन दैट. 5 years से ऊपर नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स का पास आउट ईयर. वो भी यूके में आपको मिल जाता है वेवर, बिकॉज यूके इज नॉट वेरी मच स्ट्रगलिंग फॉर दी थिंग्स कि हम बहुत टिपिकल हैं फॉर इंग्लिश स्पीकिंग. अगर स्टूडेंट का एक नॉर्मल स्पीकिंग है एंड बच्चे का प्रोसेस होता है बहुत सारा, हर कंट्री का प्रोसेस अलग होता है, तो दे एक्चुअली टेक्स इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग, मॉक सेशंस होते हैं बच्चे के जो कि यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स लेते हैं, तो वो उन्हें पता चल जाता है कि स्टूडेंट की इंग्लिश कैसी है. एंड वो भी सारे बोर्ड्स को नहीं मिलता है. वी आर हैविंग स्पेसिफिक बोर्ड्स की जिसमें कि हाँ 75% एंड अबव है, तो वेवर्स मिल जाते हैं जनरली. वो भी 5 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए बच्चे का इंग्लिश, 12th पास आउट. फिर बोर्ड्स कुछ वैसे हैं जो स्पेसिफिकली, जैसे पंजाब हरियाणा के बोर्ड्स नहीं एक्सेप्टेड है, थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है. यूपी बोर्ड्स चैलेंजिंग हो जाता है, हरियाणा बोर्ड्स चैलेंजिंग हो जाता है हमारे लिए. देन जेएन के बोर्ड्स हम नहीं प्रेफर करते हैं वो. तो उस केस में जो बच्चे उस बोर्ड से नहीं आते हैं बट दे वांट टू गो फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री, दे वांट टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम जा सकते हैं, तो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज की कुछ प्रॉपर एग्जामिनेशन है जो कि गवर्नमेंट, आउटसाइड गवर्नमेंट्स ने ही सेट किया है कि आप ये एग्जाम अगर देते हो तो आप बिल्कुल इजीली यू कैन इन एलिजिबल हो जाते हो. तो आइल्स है हमारा, पीटी है, डुओलिंगो है, टोफल है. IELTS, PT, Duolingo, TOEFL, there are all sets having different models. Speaking में आपको you need to achieve writing, listening, reading. These are the major for IELTS and PTE. Duolingo का थोड़ा अलग होता है. Yes. They are having something different. कुछ home based होते हैं, कुछ outside भी होते हैं, कुछ pen and paper based भी होते हैं, कुछ computer based होते हैं. तो एज अ टीम हम कैसे हेल्प करते हैं मैम? यारो ग्लोबल की टीम किस तरह से उनको असिस्ट करना चाहेगी? Yes, because we are having trainers for same. Like no one is providing the trainings, live to live sessions कोई नहीं देता है. Generally very few देते हैं कि मतलब उनको ये है कि रिकॉर्डेड सेशंस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड हो जाते हैं, लेकिन 1-to-1 सेशंस अगर स्टूडेंट्स को चाहिए, या स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी इन अ ग्रुप, अगर मुझे 3-4 के बच्चों के साथ का ग्रुप चाहिए, स्मॉल बैचेस, तो वो भी हमारे पास है. वी आर हैविंग ट्रेन एक्सपर्ट ट्रेनर्स जो कि आपको हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड फॉर ईच मॉडल. और ऐसा नहीं है कि आइल्स की ट्रेनिंग के लिए आपको कहीं और जाना है, पीटी के लिए कहीं और जाना है, टोफल के लिए कहीं और जाना है. द स्टूडेंट नीड्स टू डिसाइड कि उसे करना क्या है, विच इंग्लिश लैंग्वेज ही वांट्स टू राइट. आफ्टर दैट वी आर हैविंग आवर ट्रेनर्स जो कि आपको हेल्प करेंगे फॉर योर पीटी, for your TOEFL, for your IELTS, for your Duolingo. Also एग्जाम बुकिंग्स भी हमारे यहाँ हम कराते हैं स्टूडेंट्स को. तो इट्स नॉट लाइक कि वी आर ओनली प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग्स टू देम, एक्चुअली वी आर गाइडिंग कि कहाँ से आप एग्जाम बुक कर सकते हो, कौन सा स्लॉट आपको मिलेगा. प्लस उसके लिए भी वी आर हैविंग आवर टीम जो कि आपको 24/7 हेल्प कर सकती है कि अच्छा स्टूडेंट इज लोकेटेड समवेयर इन दिल्ली बट स्टूडेंट इज नॉट गेटिंग द लोकेशन ऑफ दिल्ली, हमें कहीं और का लोकेशन मिल रहा है. तो एक राइट पाथ, आपका कितना लॉन्ग पीरियड का टाइम होना चाहिए. दे आर एक्चुअली, आप कोई भी असेसमेंट करके आपको ये नहीं बताएगा कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू रीच टू दैट पॉइंट. ये आपको कोई भी
वेरी फर्स्ट नहीं बताएगा, हम आपको डेमो सेशन भी देंगे, प्लस वी आर एक्चुअली हेल्पिंग द स्टूडेंट्स इन एंटायर प्रोसेस कि हाँ आपको कितना समय लगना है। हाँ भाई मुझे पता है आपको लगना तो है, बट वो बोलते नहीं है। वो क्या होता है, ऐसा होता है जी कि आप आए, अरे मेरा क्या, मुझे 1 महीने का मेरे पास कोर्स है, मैं 1 महीने में आपको करा दूंगा। भले स्टूडेंट्स को 1 महीने में वो कोप अप कर पाए या ना कर पाए, स्टूडेंट इज नॉट हैविंग दैट मच लैंग्वेज बैरियर। वो बिल्कुल ही उसका लैंग्वेज वैसा है ही नहीं कि वो 1 महीने में कोप अप कर ले, तो कहाँ से आप इंग्लिश 1 महीने में क्रैक करा दोगे। आपने तो क्लासेस दे दी, स्टूडेंट्स को मॉक प्रैक्टिस नहीं मिली। yes. तो एक्चुअली अरब ग्लोबल इज इंट्रोड्यूस दिस मॉडल ऑफ ट्रायल बेसिस की नहीं था कि हमारा कि हम सिर्फ ट्रायल देंगे, हमने ये था कि हम स्टूडेंट्स को लाइव सेशंस देंगे, लाइव सेशंस के साथ साथ ट्रेनर उनको गाइड करेंगे एंड टू एंड मॉडल के लिए, प्रिपेयर करेंगे उनके एग्जाम्स के लिए। और इट्स नॉट लाइक कि अगर 15 दिन की क्लास चाहिए, ठीक है भैया 15 दिन की लो। अगर स्टूडेंट ने है कि 2 महीने की क्लास मुझे चाहिए, तो 2 महीने की भी हमारे पास ऑप्शन है। वी आर नॉट एक्चुअली प्रोवाइडिंग अ लिमिटेड टाइम पीरियड। आपको 6 महीने लगने, आप 6 महीने की क्लास ले लो, क्योंकि हर की प्रोफिशिएंसी अलग होती है। एक प्रॉपर हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे को मैं बोलूंगी कि तुम्हें आइल्स करना है, टाइम लगेगा, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट पीटी, आइल्स, टोफल। आपको राइट डायरेक्शन, कितने घंटे का, इतना आपको डिटेल में ना कोई ट्रेनर भी नहीं समझाएगा कि अच्छा ठीक है ये पेपर है आप इसको करके आ जाना। हमारे ट्रेनर्स आपको ये भी समझाएंगे कि कौन से पेपर में कितना टाइम लगना है, आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, आपकी राइटिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, लिसनिंग में आपको कितने, क्योंकि लिसनिंग इज समथिंग जो कि हमें लिसन करके फिर उसे डिलीवर करना होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। स्पीकिंग, हमारा एसेंट अलग होता है, वहां का एसेंट अलग होता है, तो कोप अप करना इज वेरी डिफिकल्ट। ये सारी चीजें हैं वी एक्चुअली मेड फ्रॉम एंटायर प्रोसेस कि अभी तक हमने स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल स्क्रैच से हमने स्टार्ट किया था कि नहीं, एक स्टूडेंट को अगर काउंसलिंग चाहिए तो काउंसलिंग से लेकर के काउंसलिंग के एंड पार्ट हमने ये नहीं बताना है, हमने ये करना है कि स्टूडेंट के पास 1 पॉइंट सॉल्यूशन हो कि अच्छा मेरे पास मैम आइल्स रेडी नहीं है, ठीक है बच्चे आप कर लो, आप नेक्स्ट मंथ में फाइल लगाना। वी आर नॉट लाइक कि हम फोर्स कर रहे हैं तुम्हें कि तुम अभी के अभी एप्लीकेशन डाल दो, स्टूडेंट इज नॉट रेडी विथ एनीथिंग। वी आर एक्चुअली मेकिंग दोज एप्लीकेशंस जब तुम्हारे पास एवरीथिंग इज रेडी, यू आर कॉन्फिडेंट, आपने नेक्स्ट इंटेक इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट। काउंसलर्स कभी कभी क्या होते हैं, दे आर एक्चुअली मोर फोकस्ड कि नहीं हमारे पास तो भैया टारगेट है, एप्लीकेशन डाल दो, स्टूडेंट हमारे पास आया है, हमें भेजना है स्टूडेंट को। नॉट द राइट वे। कंट्री बच्चे को अभी बुला ही नहीं सकती है, द स्टूडेंट इज नॉट हैविंग आइल्स का फुलफिलमेंट, पीटी नहीं दिया है, टोफल नहीं दिया है, हम उसकी एप्लीकेशन भेज के भी सेट क्या करेंगे। वी आर एक्चुअली होल्डिंग दैट कैंडिडेट ओनली। टू होल्ड दैट कैंडिडेट इज नॉट अ पर्पस, provide service to that candidate. Very true. It's true. It's not to provide only counseling. End to end service अगर हम बच्चे को देते हैं तो that we and my counselors is doing over here. Well, that was very much detailed, Anshita. I have lots and lots of questions on my this prompt card for you. I'll just take a very quick question before we wrap up this podcast for today. The financial assistance, correct now, and that probably is one of the major things we talk about. Money is something which is being arranged by the parents. Yeah. How can we assist the candidates in their financial assistance? And precisely, I'm talking about the solutions from the banks or the NBFCs. Very true. If I talk about the finances, yes, actually a middle class family or a higher class family too, they don't have money ready into their account. If we are going to invest 20, 30 or 40 lakh rupees overall for our study abroad destination, it's not a cup of tea for anyone to take that money out from account and give it to her or his child. You go and invest, bacha, it's your money. It's not like that. It's not that Always easy. has been very challenging. Yeah. It's very challenging. Also, many things to be planned because देखो अगर मैं जहां तक अभी तक इंडियन कल्चर को समझी हूँ, मैंने जितना भी अभी तक काउंसलिंग दिया है स्टूडेंट्स को और जो भी स्टूडेंट्स एक्सपर्टीज मेरे अभी तक जितने भी रहे हैं, द मेजर थिंग इज व्हेन द पेरेंट्स कम्स टू अस,
उनका एक सवाल जरूर होता है, मैडम सिर्फ इसने नहीं जाना है ना, इसे भेजेंगे तो कल को पीछे वाले भाई छोटा भाई भी भी, जाएगा, छोटा भाई भी जाएगा, बहन भी जाएगी, हम्म, तो उसे भी हमें भेजना है, तो कैसे भेजोगे आप? हम्म, तो वही चीज है फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम बैंक। हम्म, और यूरोप के पास वी आर हैविंग ऑल गवर्नमेंट बैंक्स टाई अप विद अस, 5 to 6 गवर्नमेंट बैंक्स की टाई अप्स है हमारे पास डायरेक्टली। वी आर हैविंग ऑल NBFCs with us. We are having all actually the private banks too. तो स्टूडेंट के पास एक डाइवर्सिफाइड मॉडल आ जाता है कि अच्छा जी मेरी फाइल कहाँ लगाओगे। स्टूडेंट का सबसे पहला सवाल होता है, मैडम किस बैंक से लोन लूं, कितने के रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आपको कहाँ से पता चलेगा? एक भाई हमने अपना प्रॉपर पोर्टल बना लिया है, हमने प्रॉपर टीम बिठा ली है उसके लिए, वो आपकी दिन रात वही काम कर रहे हैं। दे आर एक्चुअली हेल्पिंग यू विथ योर फाइल प्रिपरेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होंगे। अब बच्चे को ये भी रहता है, मैडम जमीन रखनी पड़ेगी क्या? कोलैटरल, नॉन कोलैटरल, भाई वो भी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसी यूनिवर्सिटीज भी बच्चे सेलेक्ट करते हैं जिसमें विदाउट कोलैटरल को एप्लीकेंट हो जाता है। देयर आर गुड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, दे आर गुड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन भी है। विद इन वन रूफ अगर आपको 49-50 टाई अप बैंक एंड NBFCs मिल रहे हैं, जिसमें कि वी आर गिविंग यू एन ऑप्शन, नॉट ओनली वन ऑप्शन, आपके प्रोफाइल पे, आपके प्रोफाइल के बेसिस पे कि चलो भाई सबसे कम वाला है 9.8 का रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो भाई बच्चा बोलेगा ना, अच्छा मैम कौन सी बैंक है, चलो ये है, अवांसे है, HDFC क्रेडिला है, वी आर हैविंग SBI, वी आर हैविंग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक एंड नंबर्स ऑफ बैंक। अब बच्चे का क्या होता है प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग के टाइम पे, नहीं जी वो तो मैं सोच रहा था मैं ना गवर्नमेंट बैंक से ही लूंगा क्योंकि मेरे फादर का अकाउंट ना SBI में है, शुरू से रहा है, तो मेरे फादर का कहना है कि कोई NBFCs में नहीं जाना है, वो सब बच्चे वैसे ही होते हैं, पैसे लेके भाग जाते हैं। और एक्चुअली गांव में ऐसा सोचते हैं सर, वो तो पैसा दे रहे हैं, उल्टा पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो सोचते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता है ना कि NBFCs भी कुछ होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कुछ होता है। दे आर, अरे कुछ नहीं होता है, पैसे लेके भाग जाएंगे तो क्या करेंगे हम। दे आर एक्चुअली हैविंग द माइंडसेट टू। तो वहां पे स्टूडेंट्स को एक गाइडेंस मिलना फाइनेंशियल पार्ट्स, और काउंसलर्स को ये नॉलेज होना कि हाँ आपका, अच्छा यू आर सेलेक्टिंग विथ 5 बैंक्स जिसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 है, किसी में 7 है, किसी में 11 है, किसी में 10 है। अब भाई आपके पास तो मैंने ऑप्शन दे दिया अभिषेक आपको, अब आप देख लो जी आपको किस में जाना है। आई थिंक दैट्स somehow loses the burdens of the parents also. पेरेंट्स टू। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने फाइल खुद से लगानी है, आपने सारा काम खुद से करना है। आप बैंकों में जाओगे, अलग अलग आप बैंकों में जाओगे, आप बैंकों में वहां पे आपको कितना वो देखेंगे, फिर बोलेंगे लोन डिपार्टमेंट चले जाओ, वहां पे जाओ, वहां पे ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करो, फिर बोलेंगे 2 दिन के बाद, अरे वो डॉक्यूमेंट आपका तो आया ही नहीं है सर, वो वाली डॉक्यूमेंट भी भेज दो जरा। फिर डॉक्यूमेंट के लिए आपको घुमा रहे हैं। तो we are actually felt and we actually heard these things from our students too कि मैम लोन में काफी टाइम लग गया क्योंकि बच्चे को शुरू से पता ही नहीं था कि कहाँ से स्टार्ट करना है। बट इफ द कंपनी इज प्रोवाइडिंग यू एन ऑप्शन कि हाँ भैया हमारे पास एक फ्री काउंसलिंग आपको उसकी भी मिल रही है, फ्री काउंसलिंग में आपको सब कुछ दे रहे हैं हम, वी आर प्रोवाइडिंग 1 point solution, IELTS, TOEFL, PT जो करना है करो, फाइनेंशियल असिस्टेंस ले लो, वीजा के लिए एक्सपर्ट्स बैठा दिए हैं हमने भाई, तुम्हें वहां जाने के बाद कोई दिक्कत है तो बता दो, हम अकोमोडेशन में भी बता देंगे कि कहाँ तुम्हें रहना है, और लोकल टीम विल हेल्प यू आउट विद दैट। तो ये सारी चीजों में ना कंसल्टेंसी एक्चुअली प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। अब इतनी सारी चीजों करने के लिए हम किसी को फोन करेंगे बार बार तो अच्छा नहीं लगता है। मैं अगर स्टूडेंट हूँ सर जी तो मैं बार बार फोन करूंगी अपने ताया जी को कि ताया जी वहां जाना है मुझे, मैं कैसे करूं। ताया जी 2 दिन फोन उठाएंगे, तीसरे दिन बोलेंगे कि भाई तू खुद कर ले, बताता हूँ बेटा, मैं देखता हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए है, अभी थोड़ा सोच के बताता हूँ। फिर वो ताया जी का पता चलेगा 6 महीने फोन ही नहीं आया, क्योंकि उनके पास भी इतना समय नहीं है कि वो आपके करियर के लिए परेशान हो। उनके खुद के बेटे हैं, बेटियां हैं, उनके भी करियर हैं, उनके पास बहुत सारा टाइम नहीं है। उनके पास इंडिया में रहना आसान नहीं है सर जी, तो आउटसाइड इंडिया रहना कहाँ से आसान है। तो एक कंसल्टेंसी का मतलब ही होता है, एक कंसल्टेंसी का पैकेज आपको मिल रहा है विदाउट पेइंग एनीथिंग टू दैट कंसल्टेंसी, दैट इज यूरोप ग्लोबल।
and we are actually dedicated our each member of our team for a particular person. Like अगर आपको लोन चाहिए तो वहां चले जाओ. We are having counselor for loan team. We are having our team for visa. We are having our team for IELTS. Exam bookings, yes. We are having our team for post completion of your everything. सब कुछ हो गया मेरे पास भैया, अब आपको वहां जाना है, मेरे पास उसके लिए भी टीम है. आपको एंड टू एंड गाइड कर देगा. आपको इमिग्रेशन में क्या लेके जाना है. बच्चों को ये नहीं पता होता है कि Yeah. इमिग्रेशन में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं. Very true. नहीं पता होता है. तो मैं तो यही बोलूंगी, बाय दिस मीडियम यू मेड मी दिस, कि आज मैंने बहुत कुछ बताया है आपको कि स्टडी अब्रॉड इज अ वेरी लेंथियर प्रोसेस टू अंडरस्टैंड फॉर पर्टिकुलर स्टूडेंट एंड फॉर पर्टिकुलर पेरेंट्स. And Yarab Global is made for that. We are providing each and everything to the students at their doorstep without coming also. If you want a virtual connect with us, we are helping the students. Well, on this note, I guess thank you, Anshita, Thank you very much, for a Abhishek, marathon speech, and detailing about all the insights about this journey of the candidate, thank you very much. where to start and end to end. Correct. Now you spoke about a lot of things. I think this can be very helpful for the candidates. Thank you for sparing out your time. Thank you very much.